Assalamu alaikum dear subscribers, viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for MOFCOM scholarships, Chinese government scholarship. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, please note the official website of this scholarship, which is already available in description of this video. MOFCOM Scholarship CSC Program Enrollment Guide. Degree education programs sponsored by the Ministry of Commerce of People Republic of China is designed to foster high-end business officials and managerial personnel for the accept countries. ये जो स्कॉलरशिप है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ चाइना की तरफ से है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से है। हाई ऑफिशियल्स बिजनेस मैनेजरियल जो भी रिसेप्ट कंट्रीज़ हैं जो चाइना के साथ बिजनेस से रिलेटेड है उनके लिए है। Offering 1 year and 2 year master program as well as a 3 year doctoral program to the purpose of education high end and interdisciplinary talent working in the applied field of government, trade, foreign affairs, agriculture, technology, education, cultural and health। इसका मतलब ये है कि 1 साल, 2 साल और 3 साल के पीएचडी प्रोग्राम, यानी 1 साल मास्टर प्रोग्राम, 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम या 3 साल पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं। कौन सी डिपार्टमेंट के लिए? फील्ड जो है ट्रेड वगैरह, ट्रेड है, फॉरेन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कल्चर के हिसाब से। बिल्डिंग इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड फैसिलिटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द रिसेप्ट कंट्रीज़। जो ये कंट्री एलिजिबल कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक अच्छी ताल्लुकात और इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के हवाले से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। These programs provide assistance to government officials, research fellows, and senior management personnel on their master and doctoral education in China। ये जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वालों के लिए या रिसर्च फेलोज़ वालों के लिए या जो सीनियर मैनेजरियल पर्सनल हैं उनके लिए ये मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम के विच आर फुली कंडक्टेड इन इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि सारे प्रोग्राम्स जो है इंग्लिश में है, चाइनीज़ में कोई प्रोग्राम्स नहीं है जिनके MOFCOM स्कॉलरशिप में। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड अ बैचलर डिग्री, रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस एंड डिसेंट फिजिकल कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए मास्टर या पीएचडी के लिए मास्टर होना चाहिए और दूसरे रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी हो और फिजिकली मेडिकली फिट हो। Essential for high compact curriculum needed for the degree. The program are playing a more and more important role in simultaneous economic cooperation between China and students home countries, which are the host government are attaching great attention to this program। इसका मतलब ये है कि MOFCOM Scholarship CSC program is set up by the Ministry of Commerce of People Republic of China to further strengthen the communication and cooperation between China and the receptive countries, as well as to develop talent for developing countries। इसका मतलब ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है चाइना में उनकी तरफ से है, उन कंट्रीज़ के लिए, वहाँ के रहने वाले के लिए, उन जो जिसके साथ चाइना के अच्छे ताल्लुकात हों बिज़नेस के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट चाहे इंडियन, चाहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सारे एलिजिबल हैं। स्टार्टिंग फ्राम 2015 MOFCOM CSC स्कॉलरशिप mainly sponsors the young and middle-aged talent from receptive countries to pursue the higher education and postgraduate education in China। CSC scholarship, China Scholarship Council is trusted to administer the scholarship। MOFCOM स्कॉलरशिप जो है वो मेनली यानी खास तौर पे उनको स्पॉन्सर करते हैं जो यंग हो या मिडिल एज हो रिसेप्ट कंट्रीज से और वो हायर एजुकेशन चाइना में पढ़ना चाहते हो। सपोर्टिंग कैटेगरी, ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप एंड इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज। MOFCOM scholarship CSC program support master program for 2 to 3 years or PhD program for 3 years। स्कॉलरशिप winners must register for English Start program। इसका मतलब ये है कि मास्टर जो प्रोग्राम है वो 2 से 3 इयर्स तक है या PhD 3 तक, मगर ये है कि सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश स्टार्ट में हैं, चाइनीज़ स्टार्ट में कोई भी प्रोग्राम नहीं है। वेयर एंड व्हेन टू अप्लाई, कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। द इकोनॉमिक एंड कमर्शियल काउंसलर ऑफिस ऑफ द एम्बेसी
इन योर कंट्री विल बी ओपन फॉर एप्लीकेशन। आपके कंट्री में जो चाइना की एम्बेसी है वहाँ पे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल काउंसिलर ऑफिस है, वो ओपन करेंगे एप्लीकेशन। प्लीज कंसल्ट द एप्लीकेशन रिसीविंग अथॉरिटी फॉर द डेडलाइन ऑफ ईच ईयर। तो उन्हीं से ही पूछ लें कि डेडलाइन क्या है, लास्ट डेट क्या है। एलिजिबिलिटी, बी ए सिटीजन ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री अदर देन चाइना एंड अंडर द एज ऑफ 45, यानी 45 तक एज लिमिट है। बी हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली विद अ फिजिकल एग्जामिनेशन report issued by the local public hospital and not having any disease or situation listed below। इसका मतलब ये है कि आप मेडिकली टेस्ट करवाएं, सर्टिफिकेट बनवाएं और आप में कोई भी ऐसी बीमारी ना हो जो इन्होंने नीचे दिए हैं, कोई भी ऐसी इशू नहीं हो जो इन्होंने नीचे लिस्ट दिए हुए हैं। डिजीज प्रोहिबिटेड बाय चाइनीज एंट्री एग्जिट इंस्पेक्शन एंड क्वारंटाइन लॉज एंड रेगुलेशंस। अदर्स क्रोनिक डिजीज ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, साइकोलॉजिकल डिजीज़ और भी जो मसले हैं, मेजर्स, सेवरल फिजिकल चैलेंज, प्रेगनेंसी, इस तरह का अगर कोई इशू हो, कोई भी बीमारी वगैरह हो तो आप एलिजिबल नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए। ओके, विद एटलीस्ट 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस, और कम से कम 3 years से वर्किंग एक्सपीरियंस हो। बैचलर डिग्री होल्डर वैन अप्लाई फॉर मास्टर प्रोग्राम एंड बी ए मास्टर डिग्री होल्डर वैन अप्लाई फॉर डॉक्टोरल प्रोग्राम। तो कम से कम 3 years एक्सपीरियंस हो। अगर मास्टर के लिए अप्लाई करते हो तो बैचलर डिग्री हो आपके पास। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो मास्टर या एमफिल हो। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मुझे रिलेटेड हो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हो, या वर्किंग एक्सपीरियंस या एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो भी जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो उसके रिलेटेड हो। बी पब्लिक ऑफिशियल ऑफ डिवीजन लेवल एंड अबव, मतलब ये है कि डिवीज़न लेवल तक कोई पब्लिक ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट का ही हो या मैनेजमेंट का, सीनियर स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइजेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी कंपनी है उनके सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो उसका। बी सफिशेंट इन इंग्लिश विच नीड्स द एकेडमिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। बी इक्विवेलेंट टू IELTS 6 or TOEFL 60 and above। Be with the potential of professional development and is committed to promoting the friendly exchanges and cooperation between the host country and China. Be neither studying in China or being admitted into other scholarship program provided by Chinese government। इसका मतलब ये है कि करंटली आप नई चाइना में हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, नहीं किसी स्कॉलरशिप के आप चाइना बेस पे अभी चाइना में पढ़ रहे हो, मतलब आप आउट ऑफ चाइना हो या कारोबार वगैरह कर रहे हो। स्कॉलरशिप कवरेज क्या है? स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्ट फॉर ट्यूशन फीस, टीचिंग मटेरियल्स, रिसर्च एंड सर्वे फीस, अलाउंस फॉर इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम, ग्रेजुएशन गाइडेंस फीस। इसका मतलब ये है कि अगर आपके इंग्लिश प्रोग्राम के लिए भी आपको अलाउंस अलग से देंगे। सही है, ट्यूशन फ्री है, रिसर्च फ्री है, सब कुछ फ्री है। फ्री ऑन कैंपस अकोमोडेशन, मंथली स्टाइपेंड 36,000 RMB पर ईयर पर मास्टर स्टूडेंट। इसका मतलब ये मास्टर वालों को 36,000 पर ईयर देंगे। 42,000 RMB पर ईयर फॉर PhD स्टूडेंट। वन ऑफ रीसेटलमेंट फीस 3,000 पर पर्सन, माने एक स्टूडेंट को ऑफ सेटलमेंट के 3,000 देंगे। फ्री मेडिकल इंश्योरेंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मेडिकल इंश्योरेंस भी फ्री है। वन टाइम राउंड ट्रिप इंटरनेशनल एयरफेयर। इसका मतलब ये है कि एक रिटर्न टिकट आपके लिए फ्री है। जब सेलेक्शन के बाद अपने कंट्री से चाइना जाओगे वो फ्री है, और जब स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस चाइना आओगे तो वापस अपने होम कंट्री आओगे तो वो भी फ्री है। एनुअली आपकी क्या है कि एनुअली ये आपके टेस्ट लेंगे, एग्ज़ाम्स लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। अगर आप वो सब कुछ पास कर गए, सारा प्रोसेस असेसमेंट जो भी होंगे, वर्क वगैरह वो पास करेंगे तो आपके नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। सही है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इन चाइनीज़ और इंग्लिश। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CSE स्कॉलरशिप प्रोग्राम।
जो CSC स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, वो इंश्योर यू हैव अ बहुत सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म। आप ये इंश्योर करें, कंफर्म करें कि आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया। CSC में भी, यूनिवर्सिटी पोर्टल में भी। फ़ोटोकॉपी ऑफ हाई डिप्लोमा, मतलब आपके पास जो डिग्री वगैरह है उसकी फ़ोटोकॉपी। फ़ोटोकॉपी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है वो। स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल प्लस रिज्यूम इंक्लूडिंग द एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर हाई स्कूल। उसके बाद CV भी देने हैं जिसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्किंग एक्सपीरियंस लिखे हुए हाई स्कूल के बाद, यानी इंटरमीडिएट के लिए। राइट रिसर्च प्रपोजल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस चैनल। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं उसके वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स इंक्लूडिंग 1 फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर एंड 1 फ्रॉम एकेडमिक पर्सपेक्टिव। रिकमेंडेशन लेटर एक अभी जो जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से, किसी अपने मैनेजमेंट वाले से ले लें, हेड वाले से। दूसरा ये कि जहाँ से आपने डिग्री ली है वहाँ के प्रोफेसर या डीन डायरेक्टर जो भी है उनसे ले लें। तो ये 2 रिकमेंडेशन लेटर्स इम्पोर्टेंट है, लाजमी है। एक जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से आपके जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे ले लें, मैनेजमेंट वाले हिसाब से। फोटोकॉपी ऑफ द फॉरेन फिजिकल एग्जाम्स फॉर्म, मेडिकल फॉर्म। फोटोकॉपी ऑफ द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस सर्टिफिकेट, यानी लोकल पुलिस स्टेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकलवाएं अपने तहलका ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड शुड बी इन चाइनीज़ और इंग्लिश, अदरवाइज अ नोटराइज्ड कॉपी इन चाइनीज़ और इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपकी डिग्री चाइनीज़ या इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेट करवा के चाइनीज़ या इंग्लिश में फिर उसको नोटराइज करवाएं। An original copy of degree transcript for and physical examination form and language certificate must be present for on-site verification. Applicants will get back at all the hard copy documents materials, both original copies and photocopy from ECCO of Chinese Embassy if admitted. Bringing a spouse and other dependent for accompanying is not allowed during the academic study in China. The scholarship will not provide any related cost. No explanation will be given on the enrollment result. Applications without the recommendation from ECCO of Chinese Embassy will not be considered. मीन्स अगर ECCO of Chinese Embassy के अलावा आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपके एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होंगे। Each applicant can choose one major, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करें and 3 preferred universities out of 26 designated universities. CSC will place each applicant in one university only on the basis of 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये MOFCOM स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं, मगर ये कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे और 3 यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे। इसको इंट्रोडक्शन फॉर CSC ऑनलाइन एप्लीकेशन। Step 1, visit CSC Study in China website and click scholarship application for students. Register an account through create an account and log in with your account. Step 1. Step 2, input personal details. Click edit personal details and fresh inputting personal details by filling in all the information. Verify and saving the information. After the completion of this section, return to the previous page by clicking finish and start filling in your application information. Step number 3, select the correct program category. Please select program category A only for applicant of MOFCOM scholarship CSC program. कैटेगरी A आप चूज़ करें। Step number 4, input the correct agency number. Your agency number is 00010.
कैटेगरी ए चूज़ करके फिर एजेंसी नंबर जो आप लिखेंगे वो 00010 लिख लेंगे। ये सिर्फ मॉफकॉम स्कॉलरशिप वालों के लिए एजेंसी नंबर है। CSC टाइप ए या CSC टाइप बी वालों के लिए नहीं है, उनके लिए अलग से एजेंसी नंबर है। प्रोग्राम कैटेगरी है एजेंसी नंबर आर डायरेक्टली मैच्ड, बोथ आर मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी ये दोनों टाइप ए कैटेगरी या एजेंसी नंबर ये इंपॉर्टेंट है। Input application information. Please move on the section of language proficiency and study plan and upload supporting documents as required. Then click submit to complete the application. Check each part of your application. Step 6. When submitted, amendment cannot be made on personal detail and application information. इसका मतलब ये है एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप दोबारा फॉर्म एडिट नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 3. Click print the application form and download the form. Submit a scholarship application under requirements of dispatching authorities. तो चाइनीज़ एम्बेसी या ECCO वालों के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ ये फॉर्म अटैच करके आप सबमिट करवा दें। एप्लीकेशन विथ इनकरेक्ट एजेंसी नंबर विल नॉट बी प्रोसीड। 26 ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यही ऑफ़र करते हैं: पेकिंग यूनिवर्सिटी, सिंगछुआ यूनिवर्सिटी, रेनमिन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, बेजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, बीजिंग जियाओतोंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। ये 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जो मॉफकॉम स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।